Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss Bohr's atomic model. So what is Bohr's atomic model? So this is the next atomic model after Rutherford. तो Rutherford atomic model के बाद उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया and that is Bohr's atomic model. So we all know that Bohr's atomic model was given by Niels Bohr in 1913. इसको नील बोर ने 1913 में दिया था. So listen, the main points of this atomic model are, इस मॉडल के कुछ मेन पॉइंट्स थे and first point is electron revolve around the nucleus in a circular orbit. In a circular orbit. We all know that this is nucleus and listen, electron revolve. This is electron and this electron revolve around this nucleus in a circular orbit. It means जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं. दिस सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज शेल और एनर्जी लेवल. इन सर्कुलर ऑर्बिट को शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं. सो दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट ऑर्बिट. So it is represented by n is equal to 1. It means अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में या पहली शेल में चक्कर लगा रहा है then this shell is represented by n is equal to 1. If any electron revolves in second orbit, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है then this orbit or this shell is represented by n is equal to 2, or we can say this is second shell or second energy level. If any electron revolve in third orbit or third shell, then it is represented by n is equal to 3. So listen, first point of Bohr's atomic model is electron revolve around the nucleus in a definite orbit. It means इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. इन डेफिनेट ऑर्बिट को शेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं. सो लिसन, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट शेल इट मींस n इज इक्वल टू 1. अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चक्कर लगा रहा है या दूसरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो n इज इक्वल टू 2 में चक्कर लगा रहा है. इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन थर्ड ऑर्बिट और थर्ड शेल देन n इज इक्वल टू 3. So this is number of shell. This is first cell. This is second cell. This is third cell. So listen, each orbit or each shell, this is the second point. Each shell और each orbit has definite energy. It means जितने भी definite orbits हैं, for example n is equal to 1 first orbit, n is equal to 2 second orbit, तो हर orbit के पास अपनी एक definite energy होती है. For example, if first orbit has energy E1, then second orbit has energy E2 and third orbit has energy E3. इसका मतलब हर ऑर्बिट या हर शेल की या हर एनर्जी लेवल की क्या होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है.
जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. सो लिसन, द एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इट मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे शेल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है. इट मीन्स वी कैन से E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1. इसका मतलब E3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है. फिर किसकी होगी, E2 की. फिर किसकी होगी, E1 की. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द शेल. ये शेल की एनर्जी का ऑर्डर. नाउ next point is these shells are represented by K, L, M, N and so on. इन शेल्स को K, L, M, N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. लिसन हियर, फॉर K शेल वी कैन से K शेल के लिए N की वैल्यू कितनी होगी, N इज इक्वल टू 1. For L cell, N is equal to 2. For M cell, N is equal to 3. For N cell, N is equal to 4. It means K cell के लिए N की वैल्यू या सेल नंबर क्या होगा या ऑर्बिट नंबर क्या होगा, it will be 1. For L cell, N is equal to 2. M cell, N is equal to 3. And N cell, N is equal to 4. So listen, these shells are shortly represented into this form. इन सर्कुलर सेल को या सर्कुलर ऑर्बिट्स को शॉर्टली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. दिस इज फर्स्ट सेल, N is equal to 1. It means this is K cell. N is equal to 2 means second cell. L cell, N is equal to 3 means third cell means M cell, and N is equal to 4 means N cell. So listen, ये हमारी शेल्स हैं जो कि सर्कुलर सेल थी. इनको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ लिसन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज electron revolve around the nucleus only in those orbits for which the value of angular momentum of an electron, it is an integer multiple of h upon 2 pi. It means इलेक्ट्रॉन केवल उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है. सो लिसन, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वेयर स्मॉल h इज प्लांक कांस्टेंट. जहां पर स्मॉल h क्या है, प्लांक कांस्टेंट. So listen, small n is an integer. Small n is an integer. For example 1, 2, 3 and so on. तो पहली अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में चक्कर लगा रहा है या रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, NH अपॉन 2 पाई. तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 है. इट मीन्स इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1h अपॉन 2 पाई. सो फॉर सेकेंड सेल इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 2h upon 2 pi. For third cell, the angular momentum of electron should be 3h upon 2 pi. Because the value of n increases as we increase the cell number. जैसे जैसे हम सेल में बढ़ते जा रहे हैं
वैसे वैसे n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। सो लिसन, इलेक्ट्रॉन केवल उस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, किसका, h/2 का। सो वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड n इज एन इंटीजर। सो लिसन, नेक्स्ट पॉइंट इज if any electron jumps from lower energy level to higher energy level, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, देन इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो लिसन, if the lower energy level is E1 and higher energy level is E2, then the difference between these two energy level will be delta E and it will be E2 minus E1. So when any electron jumps from lower energy level to higher energy level, then it will absorb some amount of energy and the absorbed energy will be delta E and it will be E2 minus E1. It means जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल मीन्स n इज इक्वल टू 1 से कहा जाता है n इज इक्वल टू 2 मीन्स हायर एनर्जी लेवल। हमें पता है n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट सेल की एनर्जी कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, और सेकेंड सेल या सेकेंड लेवल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। इट मीन्स n is equal to 1 means lower energy level and n is equal to 2 means higher energy level. तो कोई इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। सो दिस एनर्जी गैप विल बी द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन। सो लिसन, so delta E absorb equal to E2 minus E1, and when any electron return from higher energy to lower energy, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। सो देयर विल बी डेल्टा ई रिलीज। सो डेल्टा ई रिलीज विल आल्सो बी इक्वल टू E2 माइनस E1। तो रिलीज अमाउंट की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इन दोनों लेवल के एनर्जी गैप के। सो लिसन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाउ वी विल डिस्कस some limitations of this atomic model.